Welcome students. Today we are going to start with this book, class 11 geography में दो books है. This is the one which we are going to read. This is Fundamental of Physical Geography. इस book का first chapter आज हम लोग लेंगे and the name of that chapter is Geography as a Discipline. After completion of this chapter, what should what will be the outcome of this chapter? क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए after the completion of this chapter. So what were they? Number one, why would we study geography? इस chapter में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमें geography क्यों पढ़नी चाहिए. What is geography? Geography as an independent subject. देखो आज तक whatever we have learned, this geography जो है इसको हम लोग social science के साथ पढ़ते थे. That is your economics, history, political science and geography. But geography as an independent subject हमने नहीं पढ़ा. So इस चैप्टर से इससे आपको ये क्लियर होगा कि हमें इसे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के फॉर्म में क्यों पढ़ना चाहिए. And as you know that geography as a study of interaction of changing relationship means geography in the earlier classes you have read that geography is the you can say science of the earth or study of the earth, but earth is dominated by a human being and there is a great interaction between the human being and the nature. In this chapter we are going to learn about the relationship between the human being and the nature. Now, geography as a discipline means complete one subject. Discipline, full description के साथ हम इस geography को पढ़ेंगे. Geography as an integrating discipline. Geography is not a single subject. It is, आप कह सकते हो कि इसमें से बहुत सारे subjects originate हुए हैं या बहुत सारे subjects को हम मिलाकर के इसमें पढ़ते हैं. ठीक है? And जो सपोज करिए लाइक योर पेडागोजी सॉरी योर ओशनोग्राफी और मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो क्लाइमेट के बारे में ही पढ़ते हैं बट उनका रीड करने का स्टडी करने का एस्पेक्ट समथिंग डिफरेंट. बट हम जो पढ़ेंगे वो होगा क्लाइमेटोलॉजी, राइट. Now after that we are going to read about the branches of geography. हमारे geography में और कितने branches है, because in higher classes this geography bifurcated into many branches. Clear? Means ये इतना vast subject है, आप सारे branches को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसमें से branches choose करके पढ़ना चाहिए और कौन से basically कौन से major branches है which we are going to know in this chapter. And then physical geography means the nature, whatever is related with the nature. What are its importance? इसको समझना क्यों जरूरी है. So these all will be the outcome of this chapter. After completion of chapter, we will learn about this. Let us start. Suppose करिए आप कहीं जा रहे हैं, okay? जाते जाते आपको नींद आ गई, आपने आंखें बंद कर ली एंड सडनली जैसे आपकी आंखें खुलती हैं आपके सामने ये पिक्चर्स आते हैं, इनमें से कोई भी एक. What will come in immediately in your mind? क्या सोचेंगे आप एकदम से सबसे पहले? या श्योर आप ये जानेंगे ये जगह क्या है, लाइक देख के पहचानने की कोशिश करेंगे. लाइक ये एक लेक है, पीछे माउंटेन है, यहाँ पर एक लेक है, पीछे माउंटेन है एंड देयर इज वन टेम्पल ऑल्सो. तो ये आपने क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ये क्या चीज है. ठीक है. then the next question comes in your mind, where it is, ये यहाँ पर क्यों है और ये कौन सी जगह है. इस जगह के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. और जब इस जगह के बारे में आपको पता चल जाता है, किसी से पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, एंड देन वन थिंग अगेन, वन क्वेश्चन अगेन अराइज इन योर माइंड कि ये यहाँ पर क्यों है. व्हाई दिस टेम्पल बिल्ट ओवर हियर. अब उसको अपने उसके हिस्ट्री को पता करने की कोशिश करते हैं, क्या ये मैनमेड है या नेचुरल है. यदि नेचुरल है तो इसमें ये ओरिजिनेट कैसे हुआ होगा. यदि ये मैनमेड है तो ये कहाँ बनाया गया. सो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग में, वेयर, व्हाई, व्हाट,
ये सारी चीजें हम इसके ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं एक्चुअली. Now, one question comes again in our mind that why would we study geography? हमें क्यों पढ़ना चाहेंगे? Geography क्यों पढ़ना चाहेंगे? See, being a human being, wherever we are living, जहाँ भी हम रह रहे हैं, we are interconnected with our surroundings because this surrounding provides us resource to sustain our life. And as a curious creature, we must know, we want to know that uh, how many types of resources are there, कितने तरह के various natural resources हैं, what are the physical environment surrounding us, how can we means हम किस तरीके से interact कर रहे हैं और दूसरे लोग कैसे interact कर रहे हैं उनके surrounding से. So in these all things uh, we can able to learn by studying geography. In geography you can say. ठीक है. उसके बाद यदि कुछ हो रहा है, लाइक अभी सीजन क्या है, बारिश हो रही है मान लीजिए, तो हम क्यूरियस हो जाते हैं कि ये रेनफॉल क्यों हो रही है, ये बारिश कैसे आ जाती है और इसी टाइम पर क्यों आ रही है, ये डिफरेंट फिनोमिना को हम समझना चाहते हैं. देन ये हमें और भी हेल्प करता है समझने में. एक चीज और हेल्प करता है कि आज इस टाइम पे बारिश हो रही है, अभी बारिश कम हो रही है, पहले बारिश ज्यादा होती थी, तो व्हाई देयर इज अ चेंज इन द फिनोमिना. क्लियर. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एक और चीज है, देखो हमारी कंट्री यदि हम ले लेते हैं, आवर कंट्री इज हैविंग डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, और according to that there are different types of soil, different types of agriculture, so that influence on the culture of the people. तो हमारे यहाँ की कल्चर जो है वो भी वेरी करता है. यदि आप देखते हैं साउथ में, तो वहाँ राइस, कोस्टल रीजन में राइस स्टेपल डाइट है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में you can say wheat is the staple diet. Why it is so? Why people wearing lungi और उनका कॉस्ट्यूम जो है वो साउथ की तरफ ऐसा क्यों है और नॉर्थ में सलवार कमीज क्यों पहनते हैं? ठीक है. तो ये जो और डिफरेंट मीन्स इफ यू सी कि शादी ब्याह है या कुछ है, उसमें जो भी रिचुअल्स है वो भी वेरी करता है. समझ में आ रहा है? तो ये सब किससे इन्फ्लुएंस होता है? जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे, वहाँ का कल्चर, वहाँ का कस्टम, हर चीज इन्फ्लुएंस होता है. और वी in this geography, we want to learn that, we want to know about it. Clear. और उन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? जो being a you can a student of a geography, you develop one thing, that you can earth visualize earth in front of you in the form of a map. पूरे अर्थ एक जो स्फेरिकल फॉर्म में है उसको एक फ्लैट सरफेस पे आप विजुलाइज कर लेते हैं. जैसे कि यदि आप हिमालय के बारे में सोच रहे हैं, तो हिमालय कहाँ पर है? नॉर्थ में. यदि आपके सामने एक मैप है तो उसके नॉर्थ में, उसके टॉप पर हिमालय है. ठीक है. हमारे सामने हिमालय तो नहीं है, लेकिन हमने उसको विजुअलाइज कर लिया कि हिमालय कहाँ है. और यदि हिमालय वहां पर है, सपोज करिए कि आपका वेस्टर्न घाट है, मुंबई है, पुणे है, आप ना मुंबई गए हैं ना पुणे गए हैं, लेकिन आपको पता है कि मुंबई में बारिश ज्यादा होती है और पुणे में कम. व्हाई इट इज? तो हम एकदम से विजुअलाइज कर लेते हैं कि मुंबई के वेस्ट में अरेबियन सी है, जहां से विंड्स ब्लो करती हैं, वेस्टर्न घाट उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करती है, और विंडवर्ड साइड में होने के कारण वहां रेनफॉल हो रहा है, लीवर्ड साइड में होने के कारण पुणे में रेनफॉल कम हो रही है. ठीक है. तो ये हमने क्या किया? मैप को विजुअलाइज किया. और इन सब चीजों को समझने के लिए वी डेवलप लॉट्स ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, लाइक योर पहले लोग मैप को हाथों से ड्रॉ करते थे, बट नाउ कंप्यूटर कार्टोग्राफी आ गई है. मेकिंग अप ऑफ मैप कार्टोग्राफी कहलाता है. जीआईएस सिस्टम आ गया है, और ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी वी आर डेवलपिंग और अंडरटेकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट? सो what is geography? Now, this word geography, this geography word was first coined by Eratosthenes. Okay, his timeline is 276 BC to 194 BC. Right. Now, Eratosthenes, he was a Greek scholar, and he evolved to this geography word जो है वो बना है
दो वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज में से के दो वर्ड्स में से बना है. वन इज जियो. जियो मीन्स अर्थ, एंड ग्राफोस, ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. Okay, why he said that geography is only related with Earth and its description? Because though the Earth is what? Habitat of lots of species of plants and animals, but it is the home of, sorry, what we can say that it is the home of many creatures, but abode of human being. बहुत सारे क्रीचर्स हैं इसमें, लेकिन बेसिकली इसमें कौन रहता है? ह्यूमन बीइंग, जो इसको इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं. और जो अर्थ का सरफेस है, दिस सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज डायनामिक इन नेचर. अर्थ का जो सरफेस है वो बदलता जा रहा है. पहले जैसे दो, एक कॉन्टिनेंट था, फिर दो बने, फिर स्प्लिट अप हुए, और डिफरेंट रिलीफ फीचर्स फॉर्म हुए. और दैट वन ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट human activities, or because of this there is variation in its social and cultural features. So if you want to get the answer of this question, what is geography, first of all we have to understand, हमें समझना होगा क्या, that the physical environment has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development. So, how we can, what is the definition of geography? Geography, it is the description of the earth as the abode of human being. ये definition सबसे पहले coin किया गया था. उसके बाद Richard Hartshorne ने इसे redefine किया, that geography is concerned with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface. यदि हम अर्थ को ऊपर से देखते हैं तो वेरिएशंस हैं. डिस्क्रिप्शन यदि हमें देना है तो इस वेरिएशन को भी डिफाइन करना होगा, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हमें नजर आता है. उसके बाद हेटनर ने भी ज्योग्राफी को डिफाइन किया. He defined geography as geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the earth surface. ठीक है, अर्थ सरफेस में वेरिएशंस है, पर वो वेरिएशंस क्यों हैं और कैसे ह्यूमन बीइंग उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसी को स्टडी करना ज्योग्राफी है. So geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the Earth's surface. So हेटनर ने फिनोमेना पे प्रेशराइज किया था, हार्टसन ने किस पर किया था कि एरियल डिफरेंशिएशंस है. So to understand and to keep this definitions in your mind, who said which one, ये आपके दिमाग में आपको अपने याद रखना होगा. Discussed earlier that geography, which we study under other subject like under social science, now in class 11 हम geography को as an independent subject देखेंगे. Why it is so? Why we study geography as an independent subject? Because आपको पता है कि हम जहाँ रह रहे हैं, our physical environment, हमारी human activities और इनके बीच में जो relationship है वही geography के अंदर है. ठीक है, उसको हमें समझना होता है. And for understanding this, it is easier to understand the various dimensions of the earth and its impact on human life. If we come to know about the various dimensions of the earth and its impact on the human life, we can understand, easily understand the earth's human activities and their environment, human activities and their interrelationship. ठीक है, इसलिए ज्योग्राफी को हमें इंडिपेंडेंटली स्टडी करना चाहिए टू अंडरस्टैंड अबाउट द चेंजेस, जो भी हमारे लाइफ में जितने भी चेंजेस अकर हो रहे हैं, जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, उसको भी यदि हमें स्टडी करना है, समझना है, तो हमें ज्योग्राफी को ज्योग्राफी के अंदर इसको पढ़ना पड़ेगा. राइट, देन देयर आर वेरिएशंस इन नेचुरल रिसोर्स. अब देखो, एज आई टोल्ड यू कि ह्यूमन की नीड्स बढ़ती जा रही है, एंड टू fulfill their needs, they started utilizing gift of nature in the form of resources. So ये जो resources है, जैसे जैसे human being के needs बढ़ रहे हैं, natural resource भी अलग अलग होते जा रहे हैं, और उनको डेवलप करने के लिए हमने नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप किए, हमने उन्हें अडॉप्ट किया, और हमने अपने ही एनवायरनमेंट को बदल दिया, हमने अपने ही फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज किया, हम अपना सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करने के लिए हमने अपने एनवायरनमेंट को चेंज किया.
ठीक है, तो इन वेरिएशंस को समझने के लिए, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है, उसको समझने के लिए कि कैसे ह्यूमन इफेक्ट्स ऑन द नेचर एंड नेचर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बीइंग, इट इज नेसेसरी टू स्टडी ज्योग्राफी एज एन independent subject. As a work of geographer, what we study. एक geographer क्या करता है? Geographer explains the phenomena in a frame of cause and effect of relationship. वो ये देखता है कि ये चीज मतलब नेचर में कोई चीज हो रही है तो what is the reason behind it? Causal impact means क्या क्यों हो रहा है, और दूसरा वो देखता है कि यदि ये हुआ है, यदि ये चेंजेस आ रहे हैं तो उसका हमारे और नेचर के रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन चीज को हम लोग देखते हैं किसमें, कौन देखता है इन चीजों को, एक ज्योग्राफर देखता है। ज्योग्राफर हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन एंड आल्सो फोरसी द फिनोमेना इन फ्यूचर। वो इसको इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो नेचर है, उसमें ये इम्पैक्ट हुआ है, उसको इंटरप्रेट वो करता है कौन, ज्योग्राफर। तो वो ये भी देखते हैं कि ये क्यों हुआ है और इसका फ्यूचर में क्या हो सकता है। ऐसा अभी से यदि हम उसको ठीक ना करें तो फ्यूचर में इसका क्या प्रॉब्लम होगा। सो द ज्योग्राफिकल फिनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, चाहे वो फिजिकल हो या ह्यूमन बीइंग जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, वो स्टैटिक नहीं है, वो बदलता रहता है। ये दोनों पिक्चर्स जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर है, एक में हम दिखा रहे हैं कि प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, और दूसरा क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी। इफ यू सी दिस प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, यहाँ आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग अपनी नेसेसिटी पूरा करने के लिए टोटली डिपेंड ऑन नेचर। वो नेचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है इस एरिया में। जबकि दूसरे जो प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी में हम नेचर के बंदिश से, शकल से आजाद हो चुके हैं। वी आर हियर, वी आर एंजॉयिंग आवर फ्रीडम। हमने नेचर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिया है। हमें ठंड लगती है तो हम हीटर जला लेते हैं, हमें गर्मी लगती है तो हम एसी स्टार्ट कर देते हैं। हमने रहने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए, हमें नेचर के अंदर केव या किसी के अंदर जाके रहने की जरूरत नहीं। हमने अपने इस एरिया को ऑर्गेनाइज कर लिया। वी हैव ऑर्गेनाइज द एनवायरमेंट बाय डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन है तो उस एरिया तक हम पहुंच पा रहे हैं, कम्युनिकेशन है तो हम लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। So what we can say that there is changes occurred with the human civilization with the course of time. Okay, now here we can see that man moved from stage of necessity to the stage of freedom. They created new possibilities from the nature. We find also humanized nature and naturalized human being. Space got organized with the help of means of transport and communication. See, the primitive societies were directly dependent on their immediate physical environment for sustenance. But with the gradual development of technology, human beings are able to loosen the shackle of their physical environment. Okay. Now what we can say that present societies have modified the natural environment. They have expanded their horizon of operation and utilizing the resource provided by the nature. So what we can say that humanized nature and naturalized human beings and human being and geography that studied this interactive relationship. In geography, we study this interactive relationship. What else we come to know, हम और क्या चीज देख रहे हैं कि that now in present days people are living in villages and towns instead of caves. They uses land for producing their own food instead of hunting and food gathering. Human beings now use vehicles, roads, railways, ports for connectivity. Okay, so what we can see that geography as a study of interaction and changing relationship. Geography as a discipline is concerned with three types of questions. Okay, which already we discussed when we start this video. जब हमने ये वीडियो शुरू किया था, उसके स्टार्टिंग में मैंने इन क्वेश्चंस को ये एक्सप्लेन किया था
फिर से हम उसी चीज को देख रहे हैं कि ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन के अंदर यदि हम रखते हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के अंदर यदि हम पढ़ते हैं, तो डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें तीन क्वेश्चन अराइज होती है। दैट इज नंबर वन इज व्हाट। व्हेन वी आइडेंटिफाई द थिंग्स, इसमें आइडेंटिफिकेशन आता है, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, गल्फ, लेक, पॉन्ड, प्लेन्स, प्लेट्यूज, एक्सेट्रा। देन सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज वेयर। यदि हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये माउंटेन है, ये प्लेन है, ये प्लेट्यू है, तो ये कहाँ पर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, their location in means where it is located, is it in the north, south, east or west. So जब हम where question arise होता है, तो हम उसके लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये दोनों चीजें नॉलेज बेस्ड है, राइट? What and where. But this third question convert this subject as a scientific discipline. And the question is why. जब हम causal relationship को देखते हैं, when we start explanation or try to find out the reason behind particular process between the features, when we try to find out the relation between the features and the process and phenomena, then the question arises why this thing happened. And this question made this subject as a scientific discipline.